Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the definition of proved, disproved, and not proved, which is a part and parcel of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. And this act is a replacement of Indian Evidence Act 1872. We have already discussed. So the definition of proved, disproved and not proved specifically we will discuss in this lecture. So let's start the topic. So first of all we will discuss the definition of proved. Section 2J of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 deals with the definition of proved. A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. So what exactly the definition of proved is there? A fact is said to be proved when any fact is said to be proved that, after considering the matter before the court, if the court believes that that particular fact is in existence, or considers that there is a probability of existence of that particular fact, then such fact is said to be proved. तो proved की डेफिनेशन में क्या है कि किस फैक्ट को हम proved कहेंगे, कि फैक्ट को प्रूव हुआ कब कहेंगे, कि अगर कोई कोर्ट के सामने कोई मैटर चल रहा है और कोर्ट ने वो पूरा मैटर सुनने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो कहा गया था वो सही है, या कोर्ट को ऐसा लगता है जो कहा गया था उसके सही होने के इम्कान बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे फैक्ट को प्रूव्ड माना जाएगा. ये कब होगा? लेकिन शुरुआत में किसी ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ तो कोर्ट उसको डायरेक्टली नहीं मानेगा, प्रूव्ड में नहीं होगा. आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, कोर्ट के सामने जो मैटर चल रहा है उसको सुनने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है जो कहा गया वो सही है तो वो फैक्ट प्रूव हुआ ऐसा माना जाएगा. तो प्रूव्ड की डेफिनेशन इस तरीके से होगी. देखिए बाद में ध्यान में रखिए कि चार्जेस है इस पर्सन पे, इमेज में जो देखा गया उस पे चार्जेस है मर्डर के, है ना. एंड आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, मर्डर के चार्जेस थे, मर्डर का पूरा केस चला, केस चलने के बाद कोर्ट ने उस अक्यूज को सजा सुना दिया. अब बात ध्यान में रखिए कि कोर्ट सजा कब सुना सकता है? अगर उस पे जो इल्जाम लगे थे वो अगर प्रूव होते हैं तभी सजा होगी उसको. तो कोर्ट ने पूरा केस चलाया, पूरे विटनेसेस को सुना, गवाह पुरावों को पूरा सुना, एविडेंसेस को देखा, और एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट को ऐसा लगा कि हां जो चार्जेस अक्यूज पे लगाए गए थे वो प्रूव हो गए. तो फैक्ट क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया. अब फैक्ट जब प्रूव होता है तो डेफिनेटली अक्यूज को कन्विक्शन होगा यहां पर. तो जब कभी भी किसी केस में कन्विक्शन आता है तो वो फैक्ट प्रूव हुआ ऐसा ट्रीट होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि फैक्ट प्रूव्ड है. देखिए प्रूव्ड पे 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है जेएमएफसी में. अब इसी तरीके का क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे. फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड इफ इट इज एडमिटेड, if it is incorporated in a document, if it is not denied, if its existence is so probable that a prudent man would accept it as existing. तो अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहां पर its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. तो ऑप्शन 4 is a correct answer. अब सेकंड डेफिनेशन जो है वो है डिस्प्रूव्ड की. Section 2C of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam defines the term disproved. Disproved in relation to a fact means when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. So whenever, if any fact is before the court of law and after considering the case, if the magistrate comes to conclusion that the fact which is alleged by the person doesn't exist and its non-existence is so probable, then it means that fact is disproved. बात ध्यान में रखिए कि कोई
कोर्ट के सामने फैक्ट है या कोई कोर्ट के सामने केस चल रहा है और केस चलते हुए कोर्ट ने पूरी केस सुना और केस सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो कहा गया है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, या जो कहा गया है ऐसा रहने के कोई भी चांसेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो फैक्ट डिस्प्रूव हुआ ऐसा माना जाएगा। मैं कह रहा था कि ए ने मुझे मारा और कोर्ट में केस चला और ए ने मुझे मारने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने मुझे मारा, ये फैक्ट डिस्प्रूव हो गया। समझ रहे हो? तो ये डिस्प्रूव्ड की डेफिनेशन में आएगा। देखिए अब यहां पर केस है, इस पे चार्जेस थे रॉबरी के, है ना। अब रॉबरी के चार्जेस थे, कोर्ट में केस चला, कोर्ट में केस चलने के बाद जितने भी एविडेंसेस कोर्ट ने एनालाइज किया, उसको एनालाइज करने के बाद कोर्ट को ऐसा लगा कि रॉबरी के चार्जेस तो इस पर प्रूव हो ही नहीं रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसको एक्विटल हो जाएगा। बात ध्यान में रखिए, जब कभी भी किसी केस में एक्विटल होगा तो वो फैक्ट डिस्प्रूव्ड हुआ, फैक्ट डिस्प्रूव हुआ इसीलिए एक्विटल हुआ, फैक्ट प्रूव्ड हो जाएगा कन्विक्शन आएगा, तो ये क्या हो गया, एक्विटेड हो गया, तो फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड, फैक्ट डिस्प्रूव्ड हो गया। प्रोबेबल क्वेश्चन है, देखिए फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड, द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कंसीडर्ड इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगर हम देखें तो यहां पर बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट है, तो दोनों ऊपर के 1 और 2 करेक्ट है, क्योंकि इधर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो। अब तीसरा जो पार्ट है डेफिनेशन का वो है नॉट प्रूव्ड। सेक्शन 2I डिफाइंस द टर्म नॉट प्रूव्ड। Not proved, a fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. If the fact neither proved nor disproved, it is said that that fact is not proved. ऐसा फैक्ट जो प्रूव भी नहीं हुआ और डिस्प्रूव भी नहीं हुआ वो नॉट प्रूव्ड में आएगा। मतलब क्या हो गया कि एक तो फैक्ट प्रूव्ड हो गया तो सजा हो जाएगी, डिस्प्रूव्ड हो गया तो एक्विटल हो जाएगा। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं कि जो प्रूव भी नहीं होते और डिस्प्रूव भी नहीं होते, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो फैक्ट हो जाएगा नॉट प्रूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक आधे पर मैंने फॉर एग्जाम्पल इल्जाम लगाया किसी पर कि इसने मेरे पास से रॉबरी किया, जैसा कि यहां पर चार्जेस ऑफ रॉबरी मैंने इस पर्सन पे लगाया कि इसने रॉबरी मेरे अगेंस्ट में किया और मेरे गले से गोल्ड की चेन चोरी करके लेकर भाग गया और मेरे पास से कैश भी लेकर गया है। अब क्या हो गया कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पुलिस को एक भी एविडेंस नहीं मिला, एक भी एविडेंस नहीं मिला उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो पुलिस क्या करेगी। अब बात ध्यान में रखिए, एक्विटल और कन्विक्शन कब होता है, केस चलने के बाद, और केस चलाने के लिए एविडेंसेस का होना जरूरी होता है। अब पुलिस को जब एविडेंस ही नहीं मिले तो केस चलने का सवाल ही नहीं आएगा, तो पुलिस क्या करेगा, पुलिस ये करेगा कि कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को यह कहेगा कि वी हैव फाउंड नो एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में हमको कोई एविडेंस नहीं मिले और इसलिए अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाए। और बात ध्यान में रखिए, डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस है। एक्विटल तब होता है केस पूरी चलने के बाद अगर फैक्ट प्रूव नहीं होते हैं, उसका गुनाह सिद्ध नहीं होता है तो एक्विटल होता है। डिस्चार्ज कब होता है, एविडेंस ना मिलने के बुनियाद पर डिस्चार्ज होता है। तो एविडेंस नहीं मिले, आगे चलकर अगर एविडेंस मिलते हैं तो उसके केस में ओपन हो सकता है, उसका केस रीओपन हो सकता है। तो यहां पर एविडेंस नहीं मिले, इस बुनियाद पर डिस्चार्ज होगा। और जब कभी भी अक्यूज डिस्चार्ज होता है तो वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड के डेफिनेशन में आएगा, मतलब उसका फैक्ट प्रूव्ड भी नहीं हुआ, प्रूव्ड होता तो सजा होती, डिस्प्रूव भी नहीं हुआ, डिस्प्रूव होता तो एक्विटल होता, यहां पर डिस्चार्ज हुआ। जब कभी भी अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है तो वो नॉट प्रूव्ड के डेफिनेशन में आएगा, तो ना तो वो एक्विटल हुआ ना तो कन्विक्टेड हुआ, वो नॉट प्रूव्ड में आएगा। बात ध्यान में रखिए कि उसको तो डिस्चार्ज कर दिए, आगे चल के अगर उसके अगेंस्ट में एविडेंस मिले तो उसको सजा हो सकती है केस रीओपन करके। तो नॉट प्रूव्ड क्या है, ना तो एक्विटल है ना तो कन्विक्शन है, अगर उसको डिस्चार्ज करते हैं तो वो नॉट प्रूव्ड के डेफिनेशन में आएगा। देखिए नॉट प्रूव्ड उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, अ फैक्ट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड इज सेड प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर डेफिनेटली क्या है, प्रूव्ड और नॉट डिस्प्रूव्ड है तो वो फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, कोर्ट आइदर बिलीव्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट कंसिडर्ड इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन
under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist, disproved when the facts are neither proved nor disproved. तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. नॉट प्रूव्ड कब होगा? द फैक्ट प्रूव भी हुआ और डिस्प्रूव भी नहीं हुआ, तो वो नॉट प्रूव्ड के डेफिनेशन में आता है. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड. उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. थैंक यू वेरी मच.